کل پرسوں جوڈیشری نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کہ عمران خان صاحب جو ہے آج کے بعد جو ہے وہ جوڈیشری اور فوج کے خلاف جو ہے کوئی بیان نہیں دیں گے. تو میں نے ان کے کسی دوست کو ٹیکسٹ کیا, میں نے کہا عمران خان صاحب کو کہیں ISPR کے لیے قومی ترانے لکھیں. ایک سیاسی آدمی, ایک پولیٹیکل لیڈر کین ناٹ ٹاک اباؤٹ جوڈیشری, جسٹس, ایکولیٹی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کوئی اور طے کرتا ہے, پاکستان کی داخلہ پالیسی کوئی اور طے کرتا ہے, پاکستان میں بجٹ کی تقسیم کوئی اور طے کرتا ہے, پاکستان میں الیکشن کمیشن, پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے 2017 میں 2017 میں الیکشن کمیشن کا ایکٹ لایا گیا کہ بھائی اڑو, آپ کو آزادی مل گئی الیکشن کمیشن کو, پنجرے سے نکل آؤ. لیکن وہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا جانور وغیرہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں جب پنجرے سے ان کو باہر نکال بھی دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, وہ اڑتے نہیں ہیں, وہ واپس پنجرے میں آ جاتے ہیں. نیٹ ورکس بند کر دیتے ہیں, فون بند کر دیتے ہیں, فارم 47, فارم 48, فارم 49 کے نام پر جو ہے لوگوں کے جو ہے ریزلٹس تبدیل کر دیتے ہیں. تو یو تھنک دیٹ دیر ول بی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان؟ پاکستان کی ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اب رینٹا پارٹی بن گئی ہیں. رینٹا پارٹی کی تشریح آپ کو معلوم ہے؟ ڈو یو نو واٹ از رینٹا پارٹی؟ بلوچستان کے اندر جو کوڑا کباڑ تھا اٹھا کے 30 ایک جگہ بیچ دیے, 20 ایک جگہ بیچ دیے کہ بھائی یہ لو یہ تمہارے ہیں, یہ لو تمہارے ہیں. جس طرح انڈے نہیں ڈالے جاتے ڈبوں میں, بکسوں میں, ان کے پیچھے کسی اور کا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ پھر اسی پارٹی کے جھنڈے پہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, PTI کی حکومت ہے. نون کی بھائی خدا کو مانو یار, اور رینٹا پارٹیوں تمہارے بس میں سوار ہوئے تھے, کسی اور کی حکومت ہے. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, پارلیمنٹ کی کوئی اپنی اہمیت نہیں ہے. نہ وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتا ہے, نہ وہ اپنے مسائل خود ریزالو کر سکتا ہے, نہ وہ اپنے آپ کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو پارلیمنٹ سب میرے خیال مجھ سے پہلے علی ظفر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. ان کے والد صاحب میرے ساتھ سینیٹر ہوا کرتے تھے, تو مجھ سے بہت سینئر ہوا کرتے تھے. 2003 میں جب سینیٹر بنا, آئی واز ینگسٹ سینیٹر, تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا تھوڑا سا سلو. اس وقت مشرف کی حکومت تھی, بلوچستان میں بہت حالات گمبھیر ہوتے جا رہے تھے. تو میں نے کہا سر میں سینیٹر ہوں, میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, میرے پریویلیجز ہیں, میرے صوبے میں فوج کشی ہو رہی ہے, لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, ہمارے وسائل پر قبضہ ہو رہا ہے, ہمارے پاس پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے جو ہے ہمارے پاس لوگوں کے پاس روزی روزگار نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر صبر سے تحمل سے کام لیں کہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے کہا میرے ساتھ کون اچھا نہیں کرے گا, میں پارلیمنٹیرین ہوں. انفارچونیٹلی ایون ایز اے پارلیمنٹیرین وی سفر. میں خود وکٹم رہا, جلا وطن رہا, فیملی والے لوگ لاپتہ ہوئے, بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے. یہ جو چیزیں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں, جو آپ شہریوں کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں. تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے کیا؟ تو میں جو کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی نے ایک امریکن جج سے وہ ایک آبسینٹی کا فحاشی کا کیس سن رہے تھے, تو کسی وکلا نے ان سے زیادہ استدعا کی کہ جی آپ ذرا پورنوگرافی کی تشریح کریں کہ یہ پورنوگرافی ہے کیا. تو امریکن جج نے, سپریم کورٹ کے جو امریکہ کے جج تھے, اس نے خوبصورت بات کی. بولتا ہے آئی نو اٹ وین آئی سی اٹ. پورنوگرافی کیا ہے جب تو میں دیکھوں گا نہیں. تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از آل اباؤٹ جسٹس, آل اباؤٹ ایکولیٹی, ریسپیکٹ, پیس, ایکولیٹی. یہ چیزیں امن, انصاف, مساوات, عدل, برابری, خوف اور اراض کا شکار نہ ہونا, اسے کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی. اٹس ناٹ اباؤٹ اے بلڈنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیویجول, اٹس ناٹ اباؤٹ پریزیڈنٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ پرائم منسٹر, اٹس ناٹ اباؤٹ اے کانسٹیٹیوشن. پارلیمنٹری ڈیموکریسی از اے کلچر اینڈ دیٹ کلچر ڈزنٹ ایگزسٹ ان پاکستان. اور اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جن لوگوں نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے پاکستان میں ویسے بھی 1970 تک کی جو ساری ہسٹری ہے, میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہوں گا, آپ بور ہو جائیں گے, سبجیکٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, مشکل ہے, تاریخ میں چلے جائیں گے ہم. 1970 تک پاکستان میں جو تجربے کیے گئے وہی تجربے دہرائے جا رہے ہیں. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ گیم آف تھرون ہے. کیا ہے جو سیریز کے بھی چلتا تھا, یہ اسی کے کچھ ایپیسوڈ ہیں, صرف کیریکٹرز بدلتے جا رہے ہیں. جو پاکستان میں ہو رہا ہے, جو بھی پارلیمنٹ آ رہی ہے, جو بھی اسمبلی آ رہی ہے, اس کی جو کمپوزیشن ہے, اس کا جو اسٹرکچر ہے, اس کی جو ساخت ہے, اس کی جو آپریشنل, اس کی جو ایت ہے, ایکٹیویٹیز ہیں, وہ آپ کو دیکھیں, آپ کو پچھلی پارلیمنٹ سے کہیں بھی مختلف نہیں لگیں گی.
ज़िया-उल-हक के दौर में अगर यहां पर पीपल्स पार्टी वालों को कोड़े पड़ रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान के लोगों को कोड़े पड़ रहे थे और उनके ऊपर फौजी ऑपरेशन हो गए। आज इमरान खान की पीटीआई के लोग जेलों में मिलिट्री कोर्ट सह रहे हैं। इसी तरह जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके दौर में सियासी लोग जो हैं जेर इताब थे। हमने यही बात की जब पहले दिन हमने इमरान खान साहब के साथ जब इत्तेहाद किया, तो वी वर पार्ट ऑफ द कोलिशन, अख्तर बेंगल साहब और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। तो हमने जब उन्होंने बात की एहतसाब, तो पहला ही प्रोग्राम था, मुझसे किसी एंकर के दोस्त ने भाई ने पूछा, हामिद मीर साहब ही थे मेरे ख्याल बैठे हुए इस मजलिस में, कि जी आप ये बताएं कि जी इमरान खान साहब का तो एजेंडा ये है। हमने कहा एहतसाब नहीं, इस मुल्क को इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। अब जस्टिस इज नॉट लिमिटेड टू द कोर्ट्स, जस्टिस पॉलिटिकल भी होता है, जस्टिस इकोनॉमिकल भी होता है, जस्टिस रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में भी होता है, जस्टिस रिस्पेक्ट की शक्ल में भी होता है, जो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को यकसा दस्तयाब नहीं है। हर किसी को इंसाफ, हर किसी के इंसाफ का दायरा उसकी हैसियत, उसकी अय्यत, उसकी शहरियत, उसके सूबे, उसकी जुबान और नस्ल के एतबार से तय किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर पाकिस्तान के अंदर हम ये बात करें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। अगर पार्लियामानी डेमोक्रेसी होती तो 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। वो लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और उसको हुक्मरानी का भी इख्तियार था। 1956 तक वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके, डिसॉल्व कर दिए गए। उसके तमाम मेंबरान की ख्वाहिश थी, कोई वजीर बनना चाहता था, कोई सफीर बनना चाहता था, कोई मराद लेना चाहता था, किसी को गरज नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान से। जो भी लोग थे, अगर आपके हमारे रिश्तेदार थे, आई एम सॉरी कि उनके बारे में मैं ये कह रहा हूं। उसके बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, थोड़ी सी उसमें कुशन थी। आप लॉयर्स हैं, आप बेहतर जानते हैं, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन किसी के आर्काइव और लाइब्रेरी में भी इस वक्त मौजूद नहीं। मैंने एक दफा पुरानी कॉपी जब मैं 2003 में जब सेनेट का मेंबर था, कहीं से निकाल के देखा, इट वॉज अ वेरी फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबल, सब्सटेंटिवली, वो क्या कहते हैं, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन होता, इस पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती, जनरल अयूब खान का मार्शल ना आता, उसके बाद में जो है ये जो इलेक्शन हमने करवाए, वो उसको हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक टेलर न करते, तो आज आपसे मशरकी पाकिस्तान अलग ना होता। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं थी। दैट वाज अ फेलियर कि अगर आपके यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती, आप आधा मुल्क नहीं गंवाते। अब आते हैं आगे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हमारे लिए काबिल कदर हैं। यहां पर बात पार्टीज की नहीं है, बात यह है कि जिस हम सिस्टम के तहत ऑपरेट करते हैं उसमें इंडिविजुअल्स आते हैं। वी टॉक एज अ नेशन, जो 70 से लेकर 71 से लेकर 77 तक जो डेमोक्रेसी थी या जो पार्लियामेंट था, वो भी एक तरफा था। आपका आधा पाकिस्तान, 62% ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो है फौजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था बलूचिस्तान में, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जो है वो कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सरदार अताउल्लाह मेंगल जेल में, गौस बख्श बिजनजो जेल में, शेर मोहम्मद मरी जेल में, बलोचिस्तान और पश्तूनों की सारी लीडरशिप जेल में थी। भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट अ बिग आर्ट, डायलॉग, डिस्कशन, नेगोशिएशन, रेस्पेक्ट, understanding, or particularly in multi-ethnic countries like Pakistan, if you talk about parliamentary democracy, you need to have a leader जो ये बिल्डिंग, मेंबरशिप, झंडे, गाड़ी, वुज़रा की तकसीम, मुशारत, सदारत, इन चीजों से निकल के देखे, then you can have a parliamentary democracy in Pakistan। दूसरी, उसके बाद जितने भी हमारे पार्लियामेंट आए, I've been part and parcel of 3 parliaments। मैं सूबाई असेंबली को भी लोग पार्लियामेंट कहते हैं, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, दिस इज माई पर्सनली एक्सपीरियंस। मैं आपको अल्फिया बताऊं कि पाकिस्तान के किसी पार्लियामेंट के मसले का हल पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कोई और तय करता है, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी कोई और तय करता है, पाकिस्तान में बजट की तकसीम कोई और तय करता है, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है 2017 में 2017 में इलेक्शन कमीशन का एक्ट लाया गया कि भाई उड़ो, आपको आजादी मिल गई इलेक्शन कमीशन को, पिंजरे से निकल आओ। लेकिन वो आपने कभी कभी देखा होगा, जानवर वगैरह इतने खौफजदा होते हैं, जब पिंजरे से उनको बाहर निकाल भी दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वो उड़ते नहीं है, वो वापस पिंजरे में आ जाते हैं। 2017 में इलेक्शन एक्ट के बाद, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्शन का रिजल्ट दिया है, क्या आपके ख्याल में आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज अ प्राइम इंस्टीट्यूशन
जो इलेक्शन के प्रोसेस को रिफाइन करता है ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर एंड फ्री तरीके से पार्लियामेंट में लोगों को भेजता है, जब वो सारा सिस्टम ही फॉल्टी है, नाकिस है, खौफ का शिकार है, नेटवर्क्स बंद कर देते हैं, फोन बंद कर देते हैं, फॉर्म 47, फॉर्म 48, फॉर्म 49 के नाम पर जो है लोगों के जो है रिजल्ट तब्दील कर देते हैं, तो यू थिंक दैट देयर विल बी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? तो वो इलेक्शन कमीशन 2000 एक्ट के तहत जो आजादी दी गई वो उसने सलब कर दी। उसके बाद आया अभी 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को आई पर्सनली बैग अपॉलॉजीज, अगर मैं माजरत करता हूं अगर आप लोग मुझसे नाराज हो, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी अगर आप रेंटा पार्टी होना छोड़ दें। पाकिस्तान की सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अब रेंटा पार्टी बन गई हैं। रेंटा पार्टी की तशरीह आपको मालूम है? डू यू नो व्हाट इज रेंटा पार्टी? बलोचिस्तान के अंदर जो कूड़ा कबाड़ था उठा के 30 एक जगह बेच दिए, 20 एक जगह बेच दिए कि भाई ये लो ये तुम्हारे हैं, ये लो तुम्हारे हैं। जिस तरह अंडे नहीं डाले जाते डब्बों में, बक्सों में, चूजे और मुर्गियां, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, इफ यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हिस्टोरिकली आपकी एवोल्यूशन हुई है, आप आइडियोलॉजी पे बेस करते हैं, आप अपने अपने वर्करों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जब आप ग्रुप्स को, इंडिविजुअल को उनके मकासद के लिए पार्टी में शामिल करते हैं, रेंटा पार्टी यही है जिसको कहते हैं पैराशूटर्स, कारपेट बैगिंग, यानी वो लोग होते हैं जो ग्रुप्स की शक्ल में एक पार्टी में जाते हैं, उसका झंडा उड़ते हैं, उसके गरीब कारकुनों के वोट जो हैं वो हासिल करते हैं, उसके गरीब कारकुनों को तरक्की का, सियासी तरक्की का रास्ता रोकते हैं, क्योंकि उनके पीछे किसी और का एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। वो फिर उसी पार्टी के झंडे पे कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, नून की बॉय खुदा को मानो यार, और रेंटा पार्टियों तुम्हारे बस में सवार हुए थे, किसी और की हुकूमत है। Until unless political parties don't have accountability, self accountability within अपने अंदर, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब पाकिस्तान में पहले गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने कहा कि सदर के ओहदे को मैं सियासत से अलहदा करता हूं, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। गो कि उसके बाद लियाकत अली खान साहब जो आए मरूम, उन्होंने जो है वापस ये ओहदा वापस कर दिया, जिससे सियासत की में थोड़ी बहुत गंदगी जो शुरू हुई उसी से हुई। उन्होंने पार्टियां बनाई, मुस्लिम लीग के बजाय फिर रिपब्लिकन्स बनाए, दूसरे बनाए, तीसरे, तो सब लोग, हम कहते हैं प्रेसिडेंट जो है वो जिस मुल्क का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सबका सिंबॉलिक, वो एक किस्म का फादरली फिगर होना चाहिए, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में अभी हमने ये रिवाज कायम कर लिया है कि हमने सारे ओहदे तकसीम करना है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान के अंदर है वो अभी किसी एवोल्यूशन के तहत मुझे नजर नहीं आ रहा। बिकॉज किसी भी मुल्क में 70 साल बहुत होते हैं एवोल्यूशन के लिए। हमें हर वक्त कहा जाता है आगे बढ़ के आगे बात करो। कल परसों जुडिशरी ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया, मेरे को पता नहीं अलीजफर साहब से बात नहीं किया उन्होंने या दोस्तों ने, मैं खुद हैरान रह गया कि जुडिशरी ने फैसला किया है कि इमरान खान साहब जो है आज के बाद जो है वो जुडिशरी और फौज के खिलाफ जो है कोई बयान नहीं देंगे। तो मैंने इनके किसी दोस्त को टेक्स्ट किया, मैंने कहा इमरान खान साहब को कहें ISPR के लिए कौमी तराने लिखें। एक सियासी आदमी, एक पॉलिटिकल लीडर कैन नॉट टॉक अबाउट जुडिशरी, जस्टिस, इक्वलिटी, इट डजंट टॉक अबाउट सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, चेक पोस्ट की बात करते हैं, अफगानिस्तान के साथ तनाज़े की बात करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं तो फौज का जिक्र आएगा। जब आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं फौज का जिक्र आएगा। तो आप एक सियासी शख्स को कैसे पाबंद कर सकते हैं कि जी आप जो हैं किसी भी, ये सारे इदारे पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर आते हैं। कोई भी इदारा अगर ट्रू जेन्युइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो तो कोई भी इदारा उससे बढ़कर नहीं है। कोई इदारा किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी है। क्योंकि हम पार्टियां अब रेंटा पार्टी हो गई, हमारे अंदर अब वो सिकत नहीं रही। हम बड़े मजलूम लोग हैं, हम सब फॉर्म 47 और 45 के मारे हुए लोग हैं। हम में से कोई भी बात करेगा उसकी सीट वहां चली जाएगी। अगले दिन ये बलूचिस्तान में हो रहा है, हर दूसरे दिन आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में कोई ना कोई केस खुल जाता है, एक सीट चली जाती है। वो क्या है कि कोई जाता है मुझे अच्छी मिनिस्ट्री दो, कहता है तुमने तो कम पैसे दिए थे, जाओ ये इलेक्शन खोल दो, वहां पे नया इलेक्शन करवा दो। हम मजाक में जी रहे हैं। आई विश कि बोलना अच्छी बात नहीं है, फिर कोट करेंगे कि एक डेमोक्रेट ने कहा कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए थी। हमें कम से कम जो भी चेहरा है वो सामने नजर आ जाना चाहिए था। ये हमारे चेहरे के ऊपर किसी ने मास्क लगा के पाकिस्तान में जो हुक्मरानी हो रही है ना, ये दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट टेकिंग पाकिस्तान फॉरवर्ड।
اینڈ دس از ناٹ دا سولوشن. پاکستان نیڈز اے ٹرو ڈیموکریٹک فیس تاکہ پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے.